ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੌਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। Good morning, everyone. Your consistent YouTuber is back, and today we got a fucking sponsor, and it's me, yeah, it's me. Another day on YouTube without a sponsor feels just like a normal day क्योंकि मेरे पास sponsor नहीं है तो मैं काम तो sponsor okay छोड़ो। And मैं घर आ गया हूँ तो this is the OG setup, you know। तो तुम OGs को याद है जो पुराने लोग उनको याद होगा। शेरू रुको मैं शेरू को लेकर आता हूँ, रुको यहाँ रखेंगे इसको, यहाँ रखेंगे। So a few days back I was just scrolling through my reels, ठीक है, ऐसे रात को आधी नींद में, और मेरे साथ जो कुछ भी होता है नींद में ही होता है, पता नहीं क्यों। So I was just scrolling through my phone, my Instagram, and I got a rapper जिसने अपनी उंगली काट दी। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। And also he was singing that line कि अपनी उंगली ने वड़ के मैं गले च पा लिया। एक फिंगर में बड्डी मेरा गुस्सा ठंडा होया, तुसी मौजा लुटो नुकसान मेरा होया। Always the Punjabi and Haryanvi rapper who support gangsters. मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, but not all, yeah. So his name is Gopi Longya and he got viral TikTok के टाइम पे। फरार हो गया, तड़ी पार हो गया, जग्गा नाबे वाली जेल चो फरार हो गया। Yeah, TikTok बनाता था ये आदमी and he was a die-hard fan of Bohemia, ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਹੇਮੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਜ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਣਦੇ ਨਵਾਬ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਓ ਕਦੀ। ਲਵ ਯੂ। The whole point of making this video is to cover the fact that you are an influencer Gopi Longya। आपको बच्चे भी सुनते होंगे, पता नहीं कौन से, बट सुनते तो होंगे ना। एंड आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। The reason, first of all, the reason why he chose to cut his finger off, and also this one, chat, subscribe me, otherwise you know I'll cut my finger. This was the exact same reason। उसको Spotify पे व्यूज नहीं आ रहे थे एंड उसको उतनी ज़्यादा रीच नहीं मिल रही थी जितनी उसने एक्सपेक्ट करी थी। सो इट वॉज द टर्म एक्सपेक्टेशंस। एंड ऑल्सो ही वॉज मेकिंग सॉन्ग्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। उसने बताया लाइव पर आके उंगली काटने के बाद कि उसने अब तक 70 से 80 लाख का लॉस झेला है, 1 लाख ईच सॉन्ग। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ, 70 ਤੋਂ 65 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 75 ਲੱਖ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਏ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ 70-75 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ 70-75 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। एंड जितने भी सॉन्ग्स उसने बनाए उस पे कुछ सॉन्ग्स गायब हो गए, उनको हटवा दिया गया। 18 को हटाया था जिसमें से 10 वापस आ गए, बट हर एक सॉन्ग पे उसको 1-1 लाख का नुकसान हुआ है एंड उसको इतने ज़्यादा शोज भी नहीं मिल रहे। सो उसने हेट के चलते, उसने ये डाउनफॉल के चलते एंड ऑल्सो नॉट गेटिंग शोज, जबकि वो इतने टाइम से कंसिस्टेंट है, उसने अपनी उंगली काट दी। He chopped his finger off. The first problem is doing it and posting it on your Instagram when you hold an audience is bad. First of all, doing it is very bad. Getting a therapy is less expensive. But चलो आपने काट दिया, फिर आप उससे क्या करो? मैं तो जी गैंगस्टर, मैं नहीं कर रहा, रुको, मेरे को कोई मार देगा, नहीं कर रहा मैं अपना गैंग साइन बनाऊंगा, रुको, हमारा गैंग साइन होगा ये, and then throwing a gang sign out of it कि ये देखो मेरा gang sign, you know। तेरा भी आकार मैं भी एक इंसान, इस फिंगर दा लॉक ते मैं गल विच पाऊंगा। वो गलत है ना। एंड देन यू नो ये चीज़ पता नहीं आपने हेट के चलते या फिर जो क्या बोल रहे हो हेट के चलते और आपको इतनी ज़्यादा रीच नहीं मिली, तो मैं मुझे उंगली करते हो ना हेटर्स, लो मैं अपनी उंगली काट के दे दूंगा। हेटर्स तो बहुत कुछ बोलते होंगे, तो आप क्या सब काट दोगे? ठीक है, ये आदमी परेशान होगा, इसकी शक्ल पे दिख रहा है लाइव आके रो भी रहा था, बट सालियों में की बर्दाश्त किया मैनू पता आ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਓ ਕਦੀ। ਲਵ ਯੂ। आपने अपनी ही कटी हुई उंगली को गले में डाल दिया एंड नाउ यू आर फ्लेक्सिंग इट। इस उंगली नू मैं गले च पावांगा ते मैं क्या था
इस उंगली ਨੂੰ मैं गले च पावांगा जिन्नी बारी बोलोगे उन्नी बारी दिखावांगा, कुछ ऐसी लिरिक्स थे। हाँ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੂਗੇ ਫਾਸਟ ਦਿਖਾਊਗਾ। And then after doing it and releasing a music video around cutting your own finger, you took a retirement. इन्होंने कहा मैंने ये किया ही इसलिए क्योंकि मैंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए, इंडस्ट्री ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, मुझे कभी प्यार नहीं दिया, मुझे कभी सपोर्ट नहीं दिया, ऊपर से मैं डेप्ट में अलग चला गया हूँ। तो इसलिए व्हेन आई एम गोइंग टू टेक रिटायरमेंट, दिस इज माय काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म आई गेस, कि मैं अपनी उंगली ही काट दूंगा। तो मेरे ख्याल से गोपी लौंगिया भाई आपको ये चीज़ पहले से पता होगी, ठीक है, पहले से ऑब्वियसली, कि जब आप लाइक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में गाने बना रहे हो और एक पर्टिकुलर किस्म के गाने बना रहा हो जो जिसकी ऑडियंस ही कम है, चलो ठीक है, आपने यू मेड बेस्ट म्यूजिक इन योर जॉनरा, ठीक है, अच्छी बात है, बट द पॉइंट इज उसकी ऑडियंस ही कम है ना। द पॉइंट इज ठीक है, सपोज LED bulb, okay, I made a video about this LED bulb and the video I made is the best video possible about the light bulb, but जब उसकी ऑडियंस ही नहीं है तो कहाँ से व्यूज़ आएंगे। और अगर आप परेशान हो गए मुझे शोज़ नहीं मिल रहे, मुझे ठीक है, मुझे पैसा नहीं बन रहा है, इन्होंने लाइव पे आके बोला कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ज्ञान नहीं चाहिए। सबको चाहिए होता है बिकॉज सबको ही अपना घर परिवार पालना है एंड ऑल्सो यू नो यू हैव टू टेक लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, राइट, बट दैट डजंट मीन कि यू कम ऑनलाइन एंड यू चॉप योर फिंगर ऑफ। उससे बच्चे, अगेन द पॉइंट इज बच्चे, एंड ऑल्सो मतलब आपकी उंगली, आपका तलवार, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी काटो, आई डोंट गिव अ शिट, बट द पॉइंट इज रिटायरमेंट बिना उंगली काटे भी हो सकती थी, बस यही बात है। हौसला ना हारियो कभी, लव यू। टिकटॉक के टाइम पे भी इन्होंने बहुत अजीब सी टिकटॉक पोस्ट करी है अबाउट दैट, वो नशा नहीं होता, वो क्या होता है, वो ऐसे कुछ लगाते दांत के नीचे, कूल लिप समथिंग ऐसा कुछ तो था। मैं नहीं कहता कुछ भी, ओके, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, ये ठीक है, मैं कुछ नहीं करता। तो उसके बारे में भी विच आर वेरी डिसगस्टिंग। तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि कैसे ही टारगेटेड ऑडियंस है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਯਾਰ। मैं उस पर क्या बोलूँ, बट यू नो द फैक्ट इज फैक्ट, द ट्रूथ इज ट्रूथ। एंड ऑल्सो इसके अटायर से पता ही चल गया होगा, और जिस तरीके से ये बोल रहा है कि हाँ गाड़ी मेरे काले शीशा की दोहे पीसा की बोहेमिया, वैसे तो ही वाज अ फैन ऑफ बोहेमिया या, एंड इसने बोहेमिया को कोलैब के लिए पूछा, बोहेमिया ने लाइक रिप्लाई नहीं दिया, सो ही डिस्ड बोहेमिया। ਅੱਜ ਬੋਹੇਮੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ बीत गया पल जी। मैंने पहले कभी नहीं देखा ऐसे कि आदमी अपने आइडियल की पुंगी अच्छा पहले हम देख चुके गुड जोक दो, गुड जोक ओजीज, गुड जोक, ठीक है, ओके, कोई ना। मैं देखो बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपके साथ हुआ दैट वाज वेरी बैड, बट कि आपको शोज़ नहीं मिल रहे थे, आपका नुकसान हो रहा था, ठीक है, बट रिटायरमेंट ऐसे भी ले सकते थे। एंड आपका कोपिंग मैकेनिज्म ये था कि मैंने उंगली काट के मैं उसको नेकलेस बना के डाल दूंगा ताकि बच्चे का सीखे। कल को अगर एक बच्चे ने भी उंगली काट दी ना सर, और आप पे एक केस भी हो गया कि गोपी लौंगिया को देख के उंगली कट देती मैं, ताकि मैं थ्रो कर सका गैंग साइन, ओके, गैंग साइन थ्रो कर सका, तो आपको डेप ना लॉयर के लिए भी हो जाएगी। बाकी दिस वाज वेरी चिल वीडियो, ठीक है, बस मैं इतना बोलूँगा कि देखो इन्फ्लुएंसर्स होल्ड पावर, वेरी बिग पावर, ठीक है, कि इन्फ्लुएंसर्स का नाम ही इन्फ्लुएंसर्स है, दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल, तो आप अपनी पावर का सही तो इस्तेमाल करो। व्हाट इज दिस मैं अपनी उंगली काट दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे को देखो, मेरे को आए थे स्पॉन्सर्स, वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना, आज तक नहीं आए थे, सट्टेबाजी के आए थे, फॉलोअर्स बढ़ाने के आए थे, इंस्टाग्राम पे मेरे खुद के 200-300 फॉलोअर्स, जाके फॉलो करो। देखो as being a good creator, good influencers, I never did such kind of bad work, तो इसलिए it's your duty now to subscribe। गोपी लौंगिया जी, आपकी रिटायरमेंट होगी, मैं खुश हो जाऊंगा। वही मियाँ को डिस किया, मैं आपको नचाऊंगा। अगर उंगली कटन दो बाद भी नहीं आए व्यूज कि मैं आपकी उंगली कटाऊंगा।